السلام علیکم، پاکستان اکانومی واچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ ناظرین، ملک کی معیشت اس وقت کھڑی کہاں پر ہے؟ ایک انتہائی پیچیدہ سوال، پیچیدہ اس لیے میں اسے کہوں گا کہ اس وقت 4 ویوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ویو اگر بات کریں حکومت کا تو رائٹ فرام پرائم منسٹر سے لے کر اور نیچے اگر آپ آ جائیں گورنر اسٹیٹ بینک اور اس کے بعد ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں یا مشیر فائننس جو ہیں اور اس کے بعد دیگر وزراء میں اگر آ جاتے ہیں تو معیشت بہت اچھی کی جانب موجود ہے، بہت تیزی کی جانب موجود ہے۔ تمام معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہت مثبت ہو چکے ہیں۔ بالخصوص کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس میں کمی آنے کے بعد ٹرن اراؤنڈ معیشت ہو چکی ہے۔ یہ ایک حکومت کا ویو۔ اپوزیشن کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ملکی معیشت اس وقت چوک ہو کر رہ گئی ہے اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے جو معاشی اکنامک مینیجرز ہیں ان کی پالیسی کیا ہے۔ اس کو بھی آپ سائیڈ میں رکھیے کیونکہ یہ دونوں پولیٹیکل چیزیں ہیں۔ تیسرا ویو ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر کے ہمارے اکانومسٹ ہیں جنہیں ہم سیلنگ سائیڈ اکانومسٹ کہتے ہیں، ایک ان کا ویو ہے اور ایک چوتھا ویو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا جو کہ اس معیشت کے ہر پیچ و خم جو ہے اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ اس وقت اس معاشی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیا بنیادی وجوہات ہیں جن کو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی پالیسیاں نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی بلنڈرز ہیں، بہت بڑی غلطیاں ہیں جس کا خمیازہ آگے چل کر ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اسی چیز کو آج میں ڈسکس کروں گا۔ صرف 2-3 پوائنٹس ہوں گے جن کے اوپر آج ہم بہت زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث پائشہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے بھی جوائن کیا۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کراچی اور کراچی میں ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی جس کا اس وقت بہت زیادہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک ابھرتی ہوئی معیشت میں، ایک ایمرجنگ اکانومی میں، ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے، ڈیفیسٹ جو ہے، وہ کس حد تک سسٹین کیا جا سکتا ہے اور کیا واقعی اس وقت ٹرن اراؤنڈ ہو چکی ہے پاکستان کی معیشت؟ اور جس طریقے سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس کیا گیا، اس کی معیشت کیا قیمت ادا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اب بہت دفعہ ٹرن اراؤنڈ تو سر چکرانے لگے گا۔ اس وقت شاید ایسی کچھ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کب سے ہم سن رہے ہیں۔ شوکت عزیز نے بھی کہا تھا ٹرن اراؤنڈ کر کے ہے، جو آتا ہے کہتا ہے ٹرن اراؤنڈ کر گیا۔ میرا خیال ہے اب ہمارا سر چکرانے لگا ہے۔ دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا کم 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو ایکسپورٹ بڑھے یا کوئی نان فیکٹر ریمیٹنس وغیرہ بہت زیادہ بڑھ آ جائے، یا امپورٹ کم ہو جائے۔ امپورٹ کی کمی میں بھی اگر نان ایسینشل کنزیومرز گڈز میں کمی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر انڈسٹریل را مٹیریلز میں کمی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ریسیشن ہے۔ ایکسپورٹ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور روزگار بڑھے گا۔ انڈسٹریل را مٹیریلز اور مشینری اور فیول میں امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے انڈسٹری کا مطلب یہ کہ بند ہو رہی ہے اور روزگار ختم ہو رہا ہے۔ ہمارا تو دوسرا کیس ہے، پہلا نہیں ہے۔ ورسٹ کیس سینیریو اس پہ کوئی خوش ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے 4 ویوز کی بات کی، حکومت کا ویو لے لیں۔ ابھی کل یا پرسوں جو ہے فائنانس ایڈوائزر نے ایڈمٹ کیا کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑی ایڈمیشن نہیں ہو سکتی فیلئر کی۔ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ پھر کیا مینجمنٹ ہے اور کیا ہم حاصل کر رہے ہیں؟ یہی بات ہے کہ جی میں اپنے بچوں کو 1 مہینہ کھانا نہ کھلاؤں اور پھر شور مچاؤں، دیکھو میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں، یہ وہی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ پاشا،
आइडियल ये था, आइडियल सिचुएशन के जनाब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती और आप इंपोर्ट्स को ग्रेजुअली कम करते तो वो डेफिसिट जो है वो बिलतरतीब कम होता जाता है। यहां पर हमने एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही है, इंपोर्ट को हमने 72-73% जो है वो घटा दिया और एक इंपोर्ट बेस्ड मईशत के अंदर ये हमने करके दिखाया है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? ये जो ट्वीट्स पे पैगाम और बहुत ज्यादा कौम को मुबारकबाद दी जा रही है, ये फिर कहां खड़े हम? देखिए, मैं डॉक्टर कैसर बंगाली से बिल्कुल ही एग्री करती हूँ कि ये कोई खुशी का मकाम हमारे लिए नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ये समझ के शादियाने बजा रही है तो न सिर्फ हमारे लोगों पे आंखों पे धूल डाल रही है, बल्कि मुझे ये लगता है खुद भी एक स्टेट ऑफ कंप्लेसेंसी में जा रही है, जो कि और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये उन्हें एहसास ही नहीं है उन्होंने क्या कर डाला है इकॉनमी के साथ। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर कैसर बंगाली जब ये कह रहे हैं कि ये आपने करंट अकाउंट डेफिसिट किया है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आपने इकॉनमी पे डाली है वो टोटल रिसेशन की है। आपका तरक्यात मुल्क की जो मईशत का ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 5.5 से तो ऑलरेडी गिर चुका है 3.3 पे, और अब तो शायद वो 2 के करीब होगा अगर मैं उनको ज़रा लिबरली देखूं तो। अब ऐसे में जब इकॉनमी इतनी श्रिंक करती है, इतनी तेज़ी से कम होती है, तो आप रोज़गार में कमी होती है। ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये कोई 1-आध हज़ार की बात नहीं कर रहे हैं हम जो लॉस हुई है रोजगार में, ये हम लाखों की बात कर रहे हैं, लाखों की। और दूसरा ये है, जब इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से अफराते ज़र बढ़ता है, ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया, साथ ही साथ आपके अफराते ज़र ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, तो गुर्बत को तो आप देखिए इस इकॉनमी में क्या हाल हो रहा है। ऑलरेडी ये 70 मिलियन लोगों की गुर्बत की इकॉनमी है। आपने कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मजीद 4 मिलियन तो और 1 साल में ऐड कर दिए। तो शादियां में किस बात के, लोगों को गुर्बत में डाल के फिर आप ऐलान करें कि मैं एक एहसास प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। वो एहसास प्रोग्राम इनमें से कितने लोगों को केटर करेगा? 5 मिलियन? हमारे पास तो 74 मिलियन लोग हैं जो गरीब हैं। और ये जो अमाउंट आप जितना एहसास प्रोग्राम के लिए रख रहे हैं, वो अगर आप मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, पॉवर्टी का जो गैप है उसका 1/4 भी नहीं है। तो मैं तो कह ही रही हूं कि इसमें शादियाने बजाने का वक्त नहीं है, नहीं, मेरे ख्याल से बैठ के रोने का वक्त है। नहीं देखे कि हमने उस नहज इकोनॉमी को ले आए कि अब मेरे ख्याल से हमारे लिए खड़ा होना इस इकोनॉमी का बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए कि हम वो पॉलिसी के डायरेक्शन भी नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर अशफाक साहब की तरफ चलेंगे। जो शादियाने बज रहे हैं सर, वो शादियाने बज रहे हैं IMF की रिपोर्ट के ऊपर, शादियाने बज रहे हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर, शादियाने बज रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, और शादियाने बज रहे हैं मूडीज की रेटिंग के ऊपर। फिर ये सारी चीजें जो हुकूमत इनको आगे लेकर चल रही है और पूरे पाकिस्तान को दिखा रही है, ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर जरूर ये कहूंगा कि करंट अकाउंट के खसारे को कम करना वक्त की जरूरत थी। अगर उस वक्त मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता तो मैं भी करंट अकाउंट के खसारे को कम करने के लिए पॉलिसीज बनाता, क्योंकि इतना ज्यादा 18-19 बिलियन डॉलर का भी तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट गैप था 2018 में, ठीक, और तकरीबन 10-10.5 बिलियन डॉलर जो है वो हमारा डेट सर्विसिंग था। तो हमें 30 बिलियन डॉलर की जरूरत थी। हमारे पास रिजर्व तो थे नहीं उसको, तो इसलिए हमें शायद IMF में इसके लिए जाना पड़ा। लेकिन इसको कम करना वक्त की जरूरत थी। अब जिस तरीके से किया गया है और इसमें सिग्निफिकेंट कमी हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि इसमें कमी जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से कमी की गई है ये तरीका मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। जिस तरीके से की गई है, जैसे कैसर ने बिल्कुल सही बताया कि मैं अपने बच्चों को खाना न दूं तो मेरे बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, मैं भी इसी तरीके से कहता हूं कि आप एक घर में रह रहे हैं, आप बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का बिल भी आपको आ रहा है, आप घर बंद करके कहीं चले जाएं तो आपका ना बिजली का बिल आएगा और ना गैस का बिल आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया उसने मईशत को बिल्कुल उसके दरवाजे बंद कर दिए। तो ना बिजली इस्तेमाल हो रहा, ना गैस इस्तेमाल हो रहा, तो आपकी आमदनी बढ़ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से
ना इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आपका जो है वो करंट अकाउंट बेहतर हो गया। 96% इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट हैज कम फ्रॉम इंपोर्ट साइड, इंपोर्ट कंप्रेशन। तो जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो तरीका इंतहाई अग्रेसिव था, जरूरत से ज्यादा था, और उसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑलरेडी इकोनॉमी में पड़ रहे हैं और आइंदा भी पड़ते रहेंगे। दिस वाज ए वेरी हाई कॉस्ट अप्रोच। नहीं तो डॉक्टर साहब, सर ये बुनियादी सवाल, ये रेटिंग एजेंसीज फिर क्या कह रही हैं? यार आप देखो ना, रेटिंग एजेंसीज ने क्या कहा है। सिर्फ ये कहा है रेटिंग एजेंसीज ने कि पाकिस्तान का फ्यूचर आउटलुक जो नेगेटिव था वो स्टेबल हो गया, बस यही कहा है ना। उन्होंने कोई रेटिंग में तब्दीली तो नहीं की। वो B3 पहले भी था, B3 अभी भी है। सिर्फ आउटलुक जो है वो नेगेटिव से स्टेबल हुआ है। वो इसलिए हुआ कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, और IMF का प्रोग्राम क्या कहलाता है? स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम कहलाता है। तो IMF का प्रोग्राम तो खुद ही एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है। तो उन्होंने क्या कहा? यही कहा कि फ्यूचर स्टेबल कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में हैं। यानी अगले 39 महीने तक हम इस IMF के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर है। डॉक्टर कैसर बंगाली, आपकी तरफ आता हूं। स्टेबलाइजेशन, अब हुकूमत का ये कहना है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो चुकी है, अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, अब हम जॉब क्रिएशन की तरफ जाएंगे, अब हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की तरफ जाएंगे, अब हम पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ जाएंगे, पॉवर्टी से निकालने की तरफ जाएंगे लोगों को। डॉक्टर आयशा ने बिल्कुल सही कहा। ये जो पॉवर्टी प्रोग्राम्स ला रहे हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने BISP डिज़ाइन किया, और जब इसकी प्रेजेंटेशंस करता था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट को, मैं बार बार ये कहता था कि ये पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए इसका नाम इनकम सपोर्ट रखा गया, पॉवर्टी रिडक्शन नहीं रखा गया। इनकम सपोर्ट, पॉवर्टी रिडक्शन नहीं है। पॉवर्टी रिडक्शन नहीं है कि हमें तय था ना कि 1000 रुपये देंगे, और वो भी जो गुर्बत के लकीर के नीचे पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम हम 1/3 लोगों को दे रहे थे, 2/3 लोगों को नहीं दे रहे थे, इतने पैसे ही नहीं थे। तो ये था कि ये इससे गुर्बत नहीं ख़त्म होगी। इसी तरह ये अगर ला रहे हैं मुख्तलिफ नाम से प्रोग्राम, एहसास वगैरह, आप इससे गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक ड्रॉप इन द ओशन है। जो आपने और जो सवाल किए हैं उसका ये है कि ये मईशत जो है ये एक तो होती है आगे बढ़ती है, एक होती है एक जगह खड़ी है। हम पीछे जा रहे हैं। अच्छा, हम पीछे जा रहे हैं। अगर जो लोग समुंदर पे आए हैं, आप अगर रेत पे खड़े रहे, जैसे जैसे पानी का मौजा आता है आप अंदर जाते हैं। अगर एक जगह खड़े रहें, आपके पैर रेत में चलते जाइए। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। हमने एक निकलने का इसलिए गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है कि इंपोर्ट कंप्रेशन के साथ आपने एक टैक्स एक्सटॉर्शन का निज़ाम शुरू किया है। ठीक है, कि किसी तरह से भी टैक्स वसूल करना है, लोगों को पकड़ना है, जेल डालना है, धमकियाँ देनी है, जेब में हाथ डालना है, जेब काटना है, ठीक है, टैक्स जमा करना है। ठीक है, उससे सारी बिजनेस, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो रही है। सही। तो मईशत को आप बंद करके कर क्या रहे हैं? आपने रेटिंग एजेंसीज़ की बात की। मेरा एक व्यू है, मुझे यकीन है कि ये शेयर नहीं करेंगे बाकी वो जो है, ये साल 2000 से ये एजेंडा है कि पाकिस्तान की मईशत को इस कोने पे खड़ा किया जाए ताकि इससे जिस किस्म की कंसेशंस चाहिए हम ले सकें। और IMF का FATF से लिंक होना ये उसकी निशानदेही है। IMF का FATF से लिंक होना, ठीक है। IMF का FATF से क्या लिंक है, इस सवाल को आगे रखूंगा, लेकिन उससे पहले बात होगी कर्जा कमीशन से। 6000 अरब का जो है कर्जा 26,000 तक चला गया, तो उसके ऊपर एक कर्जा कमीशन बना। लेकिन अब पिछले 15 महीने के अंदर 10.8 ट्रिलियन 10,000 अरब जो है वो नया कर्जा लिया गया। इसको कौन देखेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद पैनल पूरा मौजूद है, हम दोबारा इसे डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। डॉक्टर आयशा, बात कर रहे हैं इस वक्त कर्जा कमीशन के हवाले से जो तहकीकात 6,000 अरब से 26,000 अरब जो है वो कर्जा कैसे चला गया, फिर पिछले 15 माह में जो 10,000 अरब गवर्नमेंट ने लोन लिया, ये कर्जे जिसमें 5,000 अरब यानी 50% ऑलमोस्ट 45-48% सिर्फ बढ़ा है आपके पॉलिसी रेट के बहाने से और डॉलर के महंगा होने से। इसके ऊपर कोई तहकीकात होगी या नहीं होगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो इस पे ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, बिकॉज़ ये पॉलिसी यानी अगर ये कर्ज़ा बढ़ रहा है और ये डेट हम मज़ीद ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम डेवलपमेंट खर्च अखराजात अपने बढ़ा रहे हैं, इकॉनमी को बूस्ट मिल रहा है, कुछ पैदावारी सलाहियत इकॉनमी की बढ़ रही है, कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, कुछ बेरोज़गारी में कमी हो रही है, गुर्बत में कमी हो रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ा इसलिए बढ़ा है कि गवर्नमेंट ने दो ओवरडू कर दी पॉलिसी चेंजेस। एक, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया जिससे डोमेस्टिक डेट इतनी तेज़ी से बढ़ गई। दूसरा, उन्होंने ओवर करेंसी को इतना ज़्यादा एडजस्ट कर दिया कि वो ओवर वैल्यू से अब अंडर वैल्यू हो गई। आज ही मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट एक आई है उसको देख रही थी, वो खुद स्टेट बैंक कह रहा है कि इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 90% है, जो कि रियल इंडिकेट कर रहा है कि हाँ पॉलिसी जो करेंसी है वो थोड़ी वो अंडर वैल्यूड हो गई है इस वक्त। तो ये इनको गवर्नमेंट को ये बात का एहसास होना चाहिए कि ये दो पॉलिसी की वजह से खुद उन्होंने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट इस हद तक बढ़ा दिए कि कर्ज़ों के ट्रैप को उन्होंने फर्दर सिवियर कर दिया है, बहुत डीपन कर दिया है। और ये पॉलिसी इन्होंने जिस वजह से भी रखी है, IMF के कहने की वजह से रखी है, या स्टेट बैंक के गवर्नर आ गए, उनको हॉट मनी, कुछ आसान मनी बाहर से अट्रैक्ट करना है ताकि तेजी में पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। देखिए, हम फॉरेन एक्सचेंज ला किस कॉस्ट पे रहे हैं, हॉट मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं 3 महीने के बिल्स पे। आप इसलिए जबरदस्ती पॉलिसी रेट बढ़ाए हुए हैं कि आपको बाहर से पैसा आ जाए और वो आपको 3 महीने के ट्रेजरी बिल्स में आ रहा है। वो जितनी और 3 महीने में, और यकीनन आप इस 1 बिलियन के करीब आ गया ऑलरेडी, इनका टारगेट 3 बिलियन है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये एक्सट्रीमली रिस्की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं IMF के कहने पे। ये पैसा जितने आसानी से इनको आता नजर आ रहा है, ये उतनी आसानी से निकल भी जाएगा और हमारे पास वो रिजर्व पोजीशन नहीं है कि हम ये धचका आराम से सह पाएंगे। ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। ये फॉरेन करेंसी कमाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। एक तो आपने रिस्क, अपने इकोनॉमी को रिस्क में डाल दिया, दूसरा आपने ये हाई पॉलिसी रेट करके इन्वेस्टमेंट के बाद बिल्कुल चांसेस ख़त्म कर दिए हैं और आपने अपने कर्जों का बोझ खुद ही अपने एक्शन से दुगना कर दिया है। ठीक है डॉक्टर अशफाक साहब, एक जानिब तो स्टेट बैंक इस चीज की निशानदेही कर रहा है, दूसरी जानिब जाहिर है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेट बैंक का डोमेन है, वही इसको आगे लेके चलता है। फिर ये जो पॉलिसी है इस वक्त कैरी ट्रेड की पॉलिसी, जिसके हॉट मनी जिसे कहा जा रहा है, एक वक्त में न सिर्फ करेंसी मार्केट, एसेट मार्केट, बल्कि आपके जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है वो भी इससे मुतासिर हो सकता है। बैंकिंग लोन्स जो है वो, उनका लोन प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा, NPLs जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या हम ये झटका सह पाएंगे? क्या सोच क्या है हुकूमत की इस वक्त? देखें, इस वक्त सारा जो जोर है वो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी पे हम सब भी डिस्कस कर रहे हैं और पिछले कई हफ्तों से यही इसी पर डिस्कशन हो रही है। देखें, इस हाई रेट पे हम कभी भी IMF से नहीं निकल सकते हैं, ये मैं लिख कर दे देता हूं आज। इसकी वजह यह है कि सिर्फ एक जो इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाया है, इसने 1 ट्रिलियन के करीब इंटरेस्ट पेमेंट हमारा बढ़ाया है। 1 ट्रिलियन, 1000 अरब, इतना हमारा करंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इतना ही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, और इससे ज्यादा कहीं पर हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ा है। मूडीज के बाकी रिपोर्ट के हवाले से कोई बात नहीं करता है। मूडीज ने क्या कहा है कि आगे 3 साल तक आपके जो बजट डेफिसिट हैं ये ओवर 8.5% ऑफ GDP रहेंगे। इमेजिन करें कि आपको बोरो करना है इसको फिल करने के लिए, तो यू विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग डेट एट ए मच फास्टर पेस।
तो रेवेन्यू तो 1000 ट्रिलियन तो नहीं बढ़ा पिछले साल, यानी कि डिस्काउंट रेट जितना हमने बढ़ाया उसकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट पेमेंट है 1000 ट्रिलियन बढ़ गया। क्या हमारा रेवेन्यू 1000 ट्रिलियन बढ़ा था पिछले साल? नहीं बढ़ा, बल्कि वो कम हो गया पिछले साल के मुकाबले में भी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इतना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा इसी रफ्तार से, अगर हमने इंटरेस्ट रेट को कुछ नहीं किया, ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट और हमारा डेट भी बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो आप सोचें कि हमारे पास रेवेन्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो अभी तो जो रेवेन्यू है अगर हमारी डेट सर्विसिंग के लिए काबिल है और कोई 20-25% हमारे डिफेंस स्पेंडिंग को फाइनेंस करता है, मैं नेट फेडरल गवर्नमेंट रिसीट्स की बात कर रहा हूं, ये आज से 2 साल के बाद ये भी इस काबिल नहीं रहेगा कि शायद अपने इंटरेस्ट को भी फाइनेंस कर सके। अच्छा ठीक है, ये मैं रखता हूं इसको डॉक्टर कैसर बंगाली की तरफ। ये हाईएस्ट इतना महंगा कर्जा आप एक वक्त में ज़ाहिर के बात की जाती है, सुकूक की बात की जाती है, यूरो बॉन्ड्स की बात की जाती है, पैंडा बॉन्ड्स की बात की जाती है, ये सारे ऑप्शंस भी शायद आपके पास थे या नहीं थे, क्योंकि इतना महंगा कर्जा आप जब ले रहे हैं और किस कॉस्ट के ऊपर ले रहे हैं, 13.25% आपने रखा हुआ है और डोमेस्टिक इकोनॉमी आपकी बिल्कुल खत्म हो रही है। कि आप कर्जा जो भी ले, कर्जा होता है, आपको ये तय करना होता है कि आप कर्जा ले क्यों रहे। जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है हमारा, उसको कम करने की बात क्यों नहीं करते। मतलब मेरे घर का अगर ख़र्चा पूरा नहीं होता है और मेरे आमदनी के कोई और मौके नहीं है तो मैं ख़र्चा ही कम करूँगा ना। ये बात क्यों नहीं हो रही है। गैर तरक्याती अखराजात जो है वो बेहद बढ़ गए और हर साल बढ़ते हैं। हर साल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कट लगता है, नॉन डेवलपमेंट में कट नहीं लगता। ये 1 खरब रुपए कम करने की ज़रूरत है। 15 से 20 डिविजन्स हैं इस्लामाबाद में जिसको मुकम्मल अबॉलिश करने की ज़रूरत है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब एक मुख्तसर काबीना का वादा किया था। डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी कमी की ज़रूरत है। बहुत सारा नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है जिसमें कमी बड़ी आसानी से हो सकती है और ज़रूरत है करने की। बात यह है कि जंग जब लड़ते हैं ना तो वो सरहद पे खड़े रह के कौमी नगमे गा के नहीं जीतते हैं हम। टैंक्स, फाइटर प्लेन्स, वॉरशिप्स, इन सब को पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल एक्सपोर्ट से आएगा क्योंकि डॉलर तो एक्सपोर्ट से ही आएंगे ना, और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग देगा। ठीक है, मईशत को बंद करके जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो ये हम सिर्फ मईशत को दाव पे नहीं लगा रहे हैं, हमने अपनी मुल्क की दिफा और अपने मुल्क की सलामती को भी दाव पे लगा दिया है। बहुत सीरियस नोट कि मुल्क की बका और सलामती को भी इस वक्त दाव पे लगा दिया इन पॉलिसीज ने। आयशा गौस पाशा, डॉक्टर, क्या आप कहेंगी किस तरीके से निकल सकते हैं इस तमाम चक्कर से, निकला क्या कैसे जाएगा? कुछ मोटी मोटी चीजें अगर आप तजवीज करें। देखिए, इस चक्करों से हमें इनकी कुछ करना है और कुछ मीडियम टर्म में करना है, यानी कुछ शॉर्ट रन और कुछ लॉन्ग टर्म। बहुत सिवियर एक्शंस हमें लेने हैं। शॉर्ट रन में तो आपने पहला काम ये करना है कि आप पॉलिसी रेट कम करें। ये जो आपने तरीकाकार निकाला है फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने का अपने, ये कोई सस्टेनेबल अंदाज नहीं है। ये कोई ऐसा अंदाज नहीं है जिस पे आप इकोनॉमी पे इतना बड़ा बोझ डालना जस्टिफाइड समझें। आपने पॉलिसी रेट कम करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा बूस्ट देना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सांस लेने देनी है ताकि यहाँ पे एक्सपोर्टेबल सरप्लस बन सके और कुछ कंपेटिटिवनेस बढ़े ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट भी ढूंढ ले। हमारी तो प्रोडक्ट भी इतनी अनकम्पेटिटिव है इसलिए कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस यहाँ बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। आपने उसको टैकल करना है। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, गैर तरक्याती खर्चे जो हैं वो आपने कम करने हैं। पिछले बजट में मैं अगर आपको एक स्टेटिस्टिक्स दूं कि जो करंट एक्सपेंडिचर से यानी गैर तरक्याती एक्सपेंडिचर से अगर आप डेट सर्विसिंग और डिफेंस निकाल देते हैं उसमें 40% तक ग्रोथ रेट है। किस चीज़ पे जा रही है वो ग्रोथ? वो क्या चीज़ कंटिजेंसीज वगैरह में आपने रखी हैं 113-112 बिलियन की, और फिर कंटिजेंट लायबिलिटीज 300 बिलियन की, जो हमें बता भी नहीं रहे हैं। कम कीजिए उन्हें और तरक्याती एक्सपेंडिचर बढ़ाएं।
उससे इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, थोड़ा सा स्टार्टअप मिलेगा। तो ये करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा फॉरेन एक्सपोर्टर्स को और इन्वेस्टर को कुछ तो अपने ऊपर भरोसा लाने दें। ये सिर्फ बातों से नहीं आएगा, आपके एक्शन से आएगा, और आपका एक्शन इस वक्त साथ नहीं दे रहा। दूसरा, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की, कि आपने हर किसी को तहस नहस कर दिया, ये भी खोल दिया, वो भी खोल दिया, शुगर पे टैक्स लगा दिया, घी पे टैक्स लगा दिया, कपड़ों पे टैक्स लगा दिया, जूतों पे टैक्स ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी लेकर आ रहे हैं आप? आपने तो सारी इकोनॉमी को हिला के रख दिया डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे। कोई सक्सेस मिली है आपको? पिछले 14 महीने में सब चीज हिलाने के बाद आपको लग रहा है आपकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हुई? जब मौका था टैक्स बढ़ाने का, OECD से इतना बड़ा डेटाबेस आया था, तो आपने तो वो टैक्स एवेडर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। आप इंतजार करते रहे कि एमनेस्टी स्कीम वो अवेल करें, वो फायदा उठाएं। तो इस तरह टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाता है। ठीक, इस पॉइंट को जरा रखेंगे की जरूरत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशफाक, ये OECD से जब डेटा आपके पास आया था, आप उसको यूज कर सकते थे, फिर आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, और बिल तरतीब जिसकी आप पहले मुखालफत करते रहे थे वही आप लेकर आए, और उसने भी कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे क्यों हर हुकूमत जो है वो आते के साथ ही ये समझती है कि जनाब अब उसके ऊपर एतमाद बढ़ गया लोगों का, और टैक्स एमनेस्टी स्कीम वंस फॉर ऑल देंगे और मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए, मैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे आने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जी करना क्या चाहिए फ्यूचर में, और हमने बातें तो बहुत कर ली। देखें, ये जो हॉट मनी है ये जहर कातिल है हमारे लिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जहर कातिल है। इस हुकूमत को बचना चाहिए इससे। ये एक बेट है, ये एक ट्रैप है IMF में दोबारा लेके जाने के लिए। दिस विल नॉट बी द लास्ट प्रोग्राम, जो कहा गया था हमें, ये लास्ट प्रोग्राम नहीं होगा। ये उसी को एक तरीके से फंसाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया है हॉट मनी का। अभी देखें कि इतना हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे हमने उनको बाहर से लोग पैसे लेकर आए, एक $1.1 बिलियन के करीब आ गया है। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना, 150-160 बिलियन के करीब आया। ठीक है, सही। अगर आप 1% अपने डिस्काउंट रेट को कम करें, 1% सिर्फ, तकरीबन 200 बिलियन की बचत होती है इंटरेस्ट पेमेंट में। सही। ओवर 200 बिलियन के आपकी बचत होती है। तो हमने किस तरह की ये पॉलिसी की है कि ये हमें डॉलर चाहिए रिजर्व को बिल्ड करने के लिए? जी, आप बिल्कुल रिजर्व को बिल्ड कर लेंगे। ये 3-3 महीने पे हमने रखा हुआ है। हाँ। ये सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो बड़े बड़े अड्डे हैं, वहां से पैसे आ रहे हैं कि केमन आइलैंड है, तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। इस इलाके ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? दूसरी चीज ये है कि जिस दिन आपने इंटरेस्ट रेट कम किया, ये पैसा निकल जाएगा आपसे, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में पहुंच जाएंगे। फिर देयर विल बी अ केस कि जी IMF प्रोग्राम में जाया जाए। और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखना, ये तमाम पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी। सर, इजिप्ट का ये मॉडल जो है, इजिप्ट में तकरीबन 19% के करीब वहां पे लेकर चले गए थे पॉलिसी रेट को। और कुछ खबरें हैं कि जनाब मैक्सिको में इसी के ऊपर जो क्राइसिस था, पीसो का उनका क्राइसिस 1994 का, थाईलैंड में आया था भात क्राइसिस 1997 में, रशिया ने इस क्राइसिस को देखा, और अर्जेंटीना ने इस क्राइसिस को देखा, इस तरह के क्राइसिस को। देखिए, बात सिंपल सी चीज है। इजिप्ट जब IMF के प्रोग्राम में गया तो उसका रिजर्व $15 बिलियन का था। जब वो प्रोग्राम 3 साल के बाद मुकम्मल हुआ, उसका रिजर्व $45 बिलियन था। ठीक है। इस 45 में तकरीबन $30 बिलियन का इजाफा किया ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 12 बिलियन तो IMF का पैसा था, क्योंकि 12 बिलियन का प्रोग्राम था। हमारा तो 6 बिलियन का है, उनका 12 बिलियन का था। ठीक। तो 12 बिलियन तो IMF का पैसा था, बाकी $20 बिलियन तो ये हॉट मनी है। हाँ हाँ। तो सारा रिजर्व जो बिल्ट हुआ इजिप्ट में, वो इसी हॉट मनी और IMF के पैसे से हुआ। सही। अभी उन्होंने 1% अपने ट्रेजरी बिल्स के रेट को कम हुआ है, उनका $1 बिलियन के करीब निकल गया इजिप्ट से बाहर। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें हम प्रोग्राम में फोरम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं,
کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو پالیسیز ہے جس پہ کہا یہ جا رہا ہے سینئر اکانومسٹ اور وہ لوگ جنہوں نے فائنانس منسٹری کو اور ان کو سرو کیا، ان کا یہ کہنا ہے جناب یہ زہر قاتل ہے، تو کیا اس کا ہم کڑوا گھونٹ ہم پیتے ہی رہیں گے یا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ان متعلقہ فورمز کے اوپر ہونی چاہیے جہاں کے لیے جن کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ قیصر صاحب، پروگرام میں وقت کی کمی ہے لہٰذا میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا فوکسڈ ہو جائیں اسی کے اوپر کہ یہ چیز ہم پروگرامز میں ہی ڈسکس کرتے رہیں گے یا آپ لوگ اپنے آرٹیکلز میں لکھتے رہیں گے یا اس کو باقاعدہ کسی فورم کے اوپر متعلقہ فورمز کے اوپر ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے؟ کہ متعلقہ فورم تو سارے حکومت کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف ان کو بلاتے ہیں جو سال بہ سال اپنا ٹیون بدلتے ہیں حکومت کے بدلنے کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتی؟ اپوزیشن تو وہاں پہ بھی ہے۔ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ آئی نہیں ہے، اپوزیشن نے بھی نہیں اٹھایا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب صرف ایک ہی فورم رہ گیا ہے حالات بدلنے کا، وہ لوگوں کو سڑک پہ آنے کا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ تو بڑی گھمبیر صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سڑک پہ جو تھے وہ آہستہ آہستہ دبیں شناختی کارڈ کے معاملے پہ، اب دیکھیں وہ صورتحال کہاں جاتی ہے۔ یہ جو چلے میں ہو رہا ہے، ایجپٹ میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، ہانگ کانگ میں ہو رہا ہے، وہاں کے عوام زندہ ہے، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، پاکستانی عوام کو بھی آواز اٹھانی ہوگی۔ ڈاکٹر عائشہ، یو ہیڈ بن فائنانس منسٹر، پروونشل فائنانس منسٹر، اسمبلی کے اندر آپ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپوزیشن جماعت سے آپ کا تعلق ہے، یہ ہاٹ منی والے ایشو کے اوپر وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے پارلیمنٹ کی فلور پہ تو سیریس ڈیبیٹ کا کوئی موقع ہی، کوئی محل کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سوال ہمارے آتے ہی نہیں ہیں، ہم کالنگ اٹینشن دیتے ہیں، وہ کالنگ اٹینشن ہمیں انٹرٹین ہی نہیں کرتے اسپیکر صاحب۔ ہم نے یہ بات اٹھائی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی، جی میں اس کی ممبر ہوں، اس میں انفلیشن پہ ہم نے کام کیا، اس پہ یہ ساری چیزیں ہم نے اٹھائیں۔ ہم سے کہا گیا، اسد عمر صاحب اس وقت چیئر کر رہے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کو، کہ اس پہ آپ تجاویز دیں کہ انفلیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کرب کیا جائے۔ ہم نے بہت محنت کر کے مجھے اس کا کنوینر بنایا گیا، ہم سب پارٹیز اس میں شامل تھیں، ہم نے محنت کر کے جلدی کیونکہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا، یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ہم نے اس کو کچھ ہفتوں میں 2-3 ہفتے میں رپورٹ اپنی سبمٹ کر دی، میرے خیال سے 2 ہفتے میں۔ اب وہ 2 مہینے سے تقریباً پڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ گورنمنٹ اس پہ وہ انٹرٹین ہی نہیں کر رہی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کر لیں، گورنر اسٹیٹ بینک نہیں آتے۔ یعنی پالیسی ریٹ اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کے بغیر آپ کیسے ڈسکس کریں گے؟ گورنر اسٹیٹ بینک تو واشنگٹن کو جواب دے ہیں، پارلیمنٹ کیوں آئیں گے وہ؟ جی یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو۔ ایڈوائزر صاحب آج تک نہیں آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جواب دیں اس پارلیمنٹ کو۔ تو ہم اپنے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں اس فورم پہ، ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہیں، وہ فائلوں میں رکھی ہوئی ابھی تک رپورٹ، اور ہمیں اس پہ ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک، ڈاکٹر اشفاق اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ موقع یہ ہے کہ ہمارے لیے ایز اے نیشن سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کا گورننس کر رہے ہیں، جہاں 22 کروڑ لوگوں کو جو چیز افیکٹ کر رہی ہے۔ کون بندہ پاکستان میں جسے انفلیشن نے ہٹ نہیں کیا؟ وہ میٹر ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر اشفاق صاحب، لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گا آپ سے، اس ہاٹ منی کے اوپر، کیری ٹریڈ کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیوں اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ جتنا یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہیں، 3 مہینے 6 مہینے، یہ جب واپس جائے گا تو خود پی ٹی آئی حکومت کے لیے پرابلم کرے گا۔ ہم اگر الیکشن کے بعد وہ تو اگلی حکومت کو چھوڑ دیں گے تو اسی حکومت کے لیے بہت زیادہ پرابلم کر سکتا ہے، پھر کیوں نہیں اس کو دیکھا جا رہا؟ دیکھیں یہ 3 مہینے کے بعد تو واپس تو نہیں جائے گا، یہ دوبارہ ری انویسٹ ہو جائے گا، ایز لانگ ایز کے انٹرسٹ ریٹ یہیں پر رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دوبارہ ری انویسٹ ہو جائے گا اور وہ پیسے بناتے رہیں گے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے وقت کی ضرورت ہے، ہمیں فائنانشیل ریپریشن پالیسی اختیار کرنی ہے۔ Our discount rate should be less than inflation rate۔ یہ IMF نے خود لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈیٹ کو سسٹینیبل لیول پہ لانا ہے تو آپ کو فائنینشیل ریپریشن پالیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں
ताकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो, आपका बजट का डेफिसिट कम हो, आपकी बोरोइंग कम हो, आपकी डेट एक्यूमुलेशन कम हो। अगर इससे पैसा हॉट मनी निकलता है, निकलने दें, आप जाके बॉन्ड फ्लोट करें। बिल्कुल, आप बॉन्ड, ये तो बड़ा एक्सपेंसिवली आप बोरो कर रहे हैं उनसे, और ये बड़ा शॉर्ट, आप जाके 5 साल 10 साल का बॉन्ड फ्लोट करें, आपके पास ब्रीदिंग स्पेस मिल सर जाएगा। कितना फर्क अपनी होगा अगर economy को- आप लेट से अगर आप सुकूक के लिए जाते हैं, यूरो बॉन्ड के लिए जाते हैं, पैंडा बॉन्ड्स के लिए जाते हैं, कितना फर्क होता है? ये तो 13.25% कमर्शियल लैंडिंग हो गई ना। देखें, ये अभी आप इस तरीके से देख लें कि 1.5-2% पे उनको बाहर से पैसे ले सकते हैं ये बैंक सारे, यहाँ पर लेकर आते हैं 12-13% पे ट्रेजरी बिल्स में 3 महीने के वो लगाते हैं। आप लुक एट दी स्प्रेड, ये 10 से 11% के स्प्रेड पे काम कर रहे हैं और 0 एक्सचेंज रेट रिस्क है, क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक्सचेंज रेट को यहाँ फिक्स किया हुआ है। अभी तो छलांगे मार रहे थे जब ऊपर की तरफ जा रहे थे, अभी फिक्स किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी ना आ जाए। तो उनको तो 10 से 11 परसेंटेज पॉइंट का जो गैप है वो उनको बेनिफिट मिल रहा है। पाकिस्तान उनके लिए एक जन्नत बन चुका है उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जो फॉरेन बैंकर्स हैं उनके लिए, कि इतना रिटर्न तो कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट रेट को कल कम कर देना चाहिए था, इसको 10% पे अभी लेकर आया जाए। ठीक है, टेस्टिंग भी हो जाएगी। ट्रैप में चला गया है, या IMF के प्रोग्राम से कभी भी नहीं निकल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर आयशा गौस पाशा और डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। सेंसस हमारे सीनियर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का कि हुकूमत को इस फौरी तौर पर इस जो कैरी ट्रेड पॉलिसी है इस वक्त लेकर चली जा रही है 13.25% पॉलिसी रेट के ऊपर, जो फॉरेन इन्वेस्टर आके पाकिस्तान में पैसा बना के जा रहा है, यह पैसा पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी के अंदर लगना चाहिए था। रियल इन्वेस्टमेंट अगर होती तो यही डॉलर, या कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल और 15 साल के जो हमारे PIB बॉन्ड्स हैं उनके अंदर ये डॉलर्स आए तो पाकिस्तान को सर्व करने वाली बात होगी। अदरवाइज बहुत बड़े रिस्क के ऊपर इकोनॉमी खड़ी है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।